تو کورونا کے مہلک بار جاری ہیں۔ لاہور ڈینجر زون بن چکا ہے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 23 اموات ہوئی ہیں اور 1226 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ 96 روز میں موذی وائرس سے 442 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور مصدقہ مریض 31,000 سے تجاوز کر گئے ہیں۔ لاہور میں 1226 نئے مریض رپورٹ ہونے کے بعد شہر میں کرونا کیسز 31,045 ہو گئے ہیں۔ شہر کے سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں کرونا کے شدید علیل مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ 124 مریض ہسپتالوں میں وینٹیلیٹر پر ہیں۔ 712 مریضوں کو آئسولیشن وارڈز میں داخل کیا گیا ہے۔ پنجاب بھر میں کرونا وائرس کے 1899 نئے کیسز کی تصدیق کے بعد مصدقہ مریضوں کی مجموعی تعداد 60,138 ہو گئی ہے۔ صوبے میں کرونا سے 53 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جس سے اموات کی مجموعی تعداد 1202 ہو گئی ہے۔ ترجمان پرائمری ہیلتھ کے مطابق کرونا وبا کے دوران پنجاب بھر میں اب تک 3,86,992 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کرونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 17,825 ہو چکی ہے۔ لاہور میں کرونا وائرس کے تشویشناک مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سرکاری ہاسپٹلز میں تمام وینٹیلیٹرز بھر گئے ہیں۔ سروسز 32، جناح 15 اور جنرل ہاسپٹل کے 20 وینٹیلیٹرز پر کورونا کے مریض موجود ہیں۔ نیو ہاسپٹل میں موجود 50 میں سے صرف 3 اور سر گنگا رام ہاسپٹل میں صرف 1 وینٹیلیٹر رہ گیا ہے۔ چلڈرن کے علاوہ شہر کے تمام سرکاری ہاسپٹلز میں وینٹیلیٹرز پر جگہ ختم ہو چکی ہے اور ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس کے 59% بستر بھی بھر گئے ہیں۔ شہر بھر میں کورونا وائرس کے باعث سمارٹ لاک ڈاؤن، گارڈن ٹاؤن کے 4 بلاک سیل کر دیے گئے ہیں۔ پولیس کی ناکہ بندی بھی جاری ہے اور رہائشیوں کو شناختی کارڈ دے کر گارڈن ٹاؤن میں جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ کورونا وائرس کے باعث گارڈن ٹاؤن میں احمد بلاک، عثمان بلاک، ابو بکر بلاک اور گارڈن بلاک کو سیل کر دیا گیا، جبکہ کینال روڈ سے گارڈن ٹاؤن کی جانب جانے والے راستے پر ناکہ لگا کر راستے کو مکمل طور پر بند کیا گیا۔ ہمارے آفس میں تقریباً 20 لوگ ہیں، ان سب لوگوں نے اپنی اپنی کوششیں کر لی ہیں اور وہ کوئی بھی انٹر نہیں ہو سکا۔ ہمارا سامان بھی اندر ہی پڑا ہے آفس کا، ہمارے لیپ ٹاپس وغیرہ، ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی۔ کہا تھا کہ پرسوں کل رات 12 بجے سے بند کریں گے، اگر ہمیں کوئی آئیڈیا ہوتا تو ہم اپنا سامان لے لیتے۔ گارڈن ٹاؤن کے انٹری پوائنٹس پر پولیس کی جانب سے بیریئرز لگا کر راستے کو بند کیا گیا، جہاں گارڈن ٹاؤن کے رہائشیوں کو شناختی کارڈ دیکھ کر اندر جانے کی اجازت دی گئی، جبکہ گارڈن ٹاؤن میں موجود دفاتر میں کام کرنے والوں سمیت دیگر شہریوں کو واپس بھیجا گیا۔ چاروں طرف سے بند کیا ہوا ہے، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، نہ باہر جانے کا نہ اندر آنے کا۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ گارڈن ٹاؤن میں سیل شدہ بلاک میں شہریوں کی نقل و حرکت پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ ہر قسم کے دفاتر کو بھی بند کروا دیا گیا ہے۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ہمراہ فہد بھٹی، سٹی 42۔ انسداد کورونا کے بروقت اقدامات نہ کرنا ڈاکٹرز کے لیے مہنگا پڑ چکا ہے۔ سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل ملتان روڈ کے MS ڈاکٹر خالد محمود بھی کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ سٹی 42 نے MS سوشل سیکیورٹی ملتان روڈ ڈاکٹر خالد محمود کی کرونا رپورٹ حاصل کر لی۔ ذرائع کے مطابق سوشل سیکیورٹی میں کام کرنے والے ڈاکٹرز گزشتہ 4 ماہ سے عدم سہولیات کا رونا رو رہے ہیں۔ ہیڈ آفس کی جانب سے ڈاکٹروں کے لیے کٹس اور ماسک کی خریداری کا عمل زیر التوا ہے، جبکہ ٹینڈر میں بھاری غلطیاں کی گئیں۔ ذرائع کے مطابق اس سے قبل MS کوٹ لکھپت اور سوشل سیکیورٹی شاہدرہ کے متعدد ڈاکٹرز اور نرسز بھی کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ سہولیات کی عدم فراہمی اور کورونا کے بڑھتے کیسز پر سوشل سیکیورٹی کے متعدد ڈاکٹر نوکریاں چھوڑ چکے ہیں، جبکہ دیگر خوف کا شکار ہیں۔ کورونا مریضوں کے لیے فائدہ مند ہونے کے انکشاف پر انجیکشن ڈیکسا میتھاسون بھی شارٹ ہو چکا ہے۔ ڈسٹریبیوٹرز نے جزوی طور پر سپلائی روک دی ہے۔ برطانوی تحقیق سامنے آنے پر انجیکشن کی طلب میں اچانک اضافہ ہو گیا۔ بلیک میں فروخت سے قیمت بڑھنے کا بھی خدشہ ہے۔ انجیکشن ڈیکسا میتھاسون برطانوی تحقیق سے قبل بھی کرونا کے درمیان اور شدید درجہ کے بیمار مریضوں کو دیا جا رہا تھا۔ ڈیکسا میتھاسون میڈیسن مارکیٹ میں وافر مقدار میں دستیاب تھی، تاہم برطانوی تحقیق سامنے آنے پر انجیکشن کی اچانک طلب بڑھنے سے اس کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ڈسٹریبیوٹر نے بھی سپلائی کو محدود کر دیا ہے۔ فارمیسیز اور میڈیکل سٹورز کو مطلوبہ مقدار میں انجیکشن دینے کا سلسلہ فی الحال روک دیا گیا ہے۔ انجیکشن ڈیکسا میتھاسون کے بحران کے باعث انجیکشن کی بلیک میں فروخت سے قیمت میں اضافے کا خدشہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ کورونا کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر جہاں لاہور میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا، وہیں ٹائیگر فورس کو مختلف علاقوں میں تعینات کر دیا گیا۔ کیا ٹائیگر فورس اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ جانتے ہیں عفیفہ نصر اللہ کی اس رپورٹ میں۔ یہاں گئی وہاں گئی، ٹائیگر فورس آخر کہاں گئی؟ شہر بھر میں لاہور کی طرف سے جاری کیے گئے سمارٹ لاک ڈاؤن کے پیش نظر جب وزیر اعظم کی تیار کردہ ٹائیگر فورس کی ذمہ داری ادا کرنے کا وقت آیا تو وہ غائب ہو گئی۔ ڈی سی لاہور دانش افضال اور اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن نے آج لاہور کے پوش علاقے کے دورے کا فیصلہ کیا تو انتظامیہ نے دورے سے 1 گھنٹہ پہلے محکمہ صحت کے افسران اور ٹائیگر فورس کو سیل پوائنٹ پر
पहुंचा दिया। टाइगर फोर्स के एहलकारों ने बताया कि उन्हें इंतजामिया की तरफ से सील पॉइंट पर 1 घंटा पहले मुकर्रर किया गया। जिस इलाके में लॉकडाउन हुआ है, सील किया है, वहाँ पे सबकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, सब लोग वहाँ पे मौजूद हैं। आप जाके उनको देखें, अपना काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से SOP पे अमल करवा रहे हैं, लोगों को घरों से बाहर निकलने में मतलब कि नहीं निकलने दे रहे। हमें ये ऐसी ऑफिस से हमारे व्हाट्सएप का हमने बना हुआ ग्रुप, जहाँ पे DC साहब या SC साहब जाते हैं तो हमें उन पर आगाह किया जाता है, तो उसके लिए फिर हम टाइगर जवान को आगे मैं मैसेज कर देता हूँ, फिर वो वहाँ पहुँच जाते हैं और इस तरह हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की तरफ से टाइगर फोर्स को लगाना सिर्फ और सिर्फ सियासी शोबदाबाजी है। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। और इस शहर में लॉकडाउन जारी है, सड़कें बंद होने से शहरी परेशान हैं। अपोजिशन अरकान असम्बली कहते हैं कि हुकूमत के लॉकडाउन के हवाले से आधा तीतर आधा बटेर वाली पॉलिसी की वजह से कोरोना फैला है। शहर में कोरोना वायरस की वजह से बहुत से इलाकों को बंद कर दिया गया है, जिस पर अपोजिशन अरकान असम्बली ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि नाअहल हुक्मरान अगर खुद कोई पॉलिसी नहीं बना सकते तो शहबाज शरीफ से ट्यूशन ले लें। कभी एक गली बंद करते हैं, कभी दूसरी गली बंद करते हैं। जब पहले दिन जब ये कोरोना शुरू हुआ था तो पूरी दुनिया में इनको चाहिए था कि ये कंप्लीट लॉकडाउन करते और उस पर अमल करवाते ताकि ये वबा, ये वायरस आगे नहीं फैलता। टाइगर फोर्स तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन कोशिश इनको ये कर लेनी चाहिए, एक मशवरा है कि टिड्डी दल जो इतना ज़्यादा फैल चुका है उसके लिए इनको ढोल दे के बजाना शुरू करवाएं इनसे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि किसानों की कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी। सड़कें इन्होंने जो बंद की हुई हैं, बहरहाल कोई इंतजामिया नहीं है। पार्लिमानी सेक्रेटरी लेबर शकील शाहिद कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों को बंद करना है ताकि मूजी वायरस ज्यादा न फैले। जिन इलाकों में, जिन बाज़ारों में, जिन जगहों पे ज़्यादा रश है वहाँ पर लॉकडाउन किया गया ताकि लोग कम बाहर निकलें। अब और जब इंशाल्लाह ये लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन कामयाब होगा तो हमें ये खुशी होगी कि ये फिगर जो है नीचे आएगा। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली की वजह से एक तरफ कोरोना वायरस फैल रहा है तो दूसरी जानिब गली मोहल्लों को बंद करने से अवाम परेशान है। कैमरामैन अली नुमान के साथ उमर असलम, सिटी 42। शहर में गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से बिजली की खपत में भी इजाफा हो चुका है। लेस्को की डिमांड 4200 मेगावाट तक पहुंचने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में 3-3 घंटे की लोड शेडिंग करने का फैसला किया गया है। शहर में गर्मी की लहर बरकरार है, जिसकी वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ज़राए ने बताया कि लेस्को की डिमांड 4200 मेगावाट से तजावुज कर गई है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से 4100 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। इस तरह 100 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से 30% तक के लाइन लॉसेज वाले इलाके में 3 घंटे की लोड शेडिंग करने का फैसला किया गया है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा और साथ ही गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दोपहर कर दिया है। शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग के बायस ना कारोबार का कोई हाल है और ना ही रात को सुकून है। शहर की गर्मी और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। लोड शेडिंग के बायस जहां कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होती हैं, वहीं गर्मी में शहरियों का सुकून भी छिन गया है। शहरियों का कहना है कि एक तो गर्मी की शिद्दत से बुरा हाल, ऊपर सोने पर सुहागा लोड शेडिंग। हुकूमत को चाहिए अगर लोड शेडिंग करनी ही है तो वक्त मुकर्रर कर दें ताकि आवाम को पता हो कि किस हिसाब से चलना है। कारोबार अफेक्टेड है। दूसरी बात है कि आल औलाद जो है ना वो वैसे ही परेशान है। लाइट तो है नहीं है, गर्मी ऊपर से बहुत ज़्यादा है। बाकी ये मसले मसाइल जो है ना ये हुकूमत की समझ में आना चाहिए ना। हुकूमत तो सोचना चाहिए दिन टाइम लाइट भेजनी, रात तो लाइट नहीं जानी चाहिए। ऐसा होना चाहिए भाई घंटा जानी है, 2 घंटे जाने, घूमो तो पता ही नहीं चल रहा मैंने करना क्या है। शहरी कहते हैं कि कोरोना वायरस से वैसे ही हर फर्द परेशान है, ऐसे में गैर एलानिया लोड शेडिंग और मुख्तलिफ बहरानों से परेशानी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। कैमरा टीम वकार अहमद के साथ उस्मान इलियास, सिटी 42 लाहौर। जबकि शहर के किसी भी इलाके में चीनी 70 रुपए फी किलो में फरोख्त नहीं हो सकी है, चीनी 80 से 85 रुपए में ही फरोख्त होती रही। एक तरफ जिलाई इंतजामिया चीनी की फरोख्त 70 रुपए फी किलो में करवाने पर बाज़िद है, तो दूसरी तरफ शहर के किसी भी इलाके में इंतजामिया के अहकामात पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। जबकि चीनी 80 से 85 रुपए फी किलो में ही फरोख्त होती रही। बरी मंडी के बेशतर शुगर डीलर्स ने गुज़िश्ता 3 रोज से शुगर मिलों से चीनी की खरीदारी बंद कर रखी है, जिसके बायस शहर में चीनी की किल्लत का खदशा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सरकारी नरखनामा तो जारी कर देती है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता। यूटिलिटी स्टोर्स के अलावा शहर के किसी भी इलाके में सस्ती चीनी फराहम नहीं की जा रही, जो कि जिलाई इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है।
आम जनरल स्टोर्स में तो किसी पे भी 70 पे नहीं मिल रही, अलबत्ता यूटिलिटी स्टोर में 68 पे मिल रही है, बट आम जो भी मोहल्ले के करियाना या जनरल स्टोर्स हैं उसमें 80 से 85 रुपये किलो मिल रहा है। दूसरी जानिब अकबरी मंडी के शुगर डीलर्स का कहना है कि अगर हुकूमत ने 70 रुपए फी किलो में चीनी फरोख्त करवानी है तो शुगर मिलों से चीनी 65 रुपए के हिसाब से फराहम की जाए। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। और दूसरी जानिब शहर में पेट्रोल की किल्लत का मसला भी ताहाल बरकरार है। शहर के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की अदम दस्तयाबी शहरियों के लिए बड़ा मसला बन चुकी है। शदीद गर्मी में पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें और घंटों का इंतजार मामूल बन गया है। पेट्रोल की कीमत क्या कम हुई, पेट्रोल ही नायाब हो गया। इतना वक्त गुजरने के बावजूद भी हुकूमत से पेट्रोल की किल्लत का मसला हल न हो सका। पेट्रोल की कमी के बायस परेशानी में मुब्तला शहरियों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। शहरियों का कहना है कि ऐसी कम कीमत को क्या करना जिसके बाद पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। मैं कल भी आया, इन्होंने कहा जी गाड़ी आ रही है, ठीक है, पेट्रोल नहीं दे रहे। आज भी मैं आया हूँ, तकरीबन मुझे 3 घंटे होंगे इधर आए, वो मेरी गाड़ी सामने खड़ी है, पेट्रोल नहीं दे रही है। पेट्रोल पंप्स के मैनेजर का कहना था कि हुकूमत हमें जितना पेट्रोल फराहम कर रही है उतना ही आवाम को दे रहे हैं। हमारी यहाँ तकरीबन को 25 से 30 हज़ार लीटर की सेल है और हमें उससे कहीं तीसरा हिस्सा भी हमें नहीं दिया जा रहा। जितना भी हमें मिलता है हम उसे फ़ौरन आवाम तक पहुँचाते हैं। हमारी कोशिश होती है हम आवाम को रिलीफ दें। जितना हमारे पास पंप पे तेल आता है हम उससे फिलफौर लोगों तक पहुंचाते। पेट्रोल की किल्लत के बायस पेट्रोल पंप्स पर शदीद गर्मी में गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। घंटों का इंतजार मजबूरी बन गया। कैमरामैन वकार अहमद के साथ उस्मान इलियास, सिटी 42 लाहौर। और मजंग के इलाके में 2 दिन से पानी बंद है। इलाके को करबला बना दिया गया है। पानी ना मुंह हाथ धोने के लिए है और ना ही वुजू करने के लिए दस्तयाब है। वासा हुकाम के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। मजंग और इससे मुलहका इलाके में 2 रोज से पानी गायब, पीने के लिए भी पानी मुयस्सर नहीं है। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए, वाज़ा हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की। अहले इलाका का कहना है कि पानी आता ही नहीं और अगर गलती से आ भी जाए तो गंदा पानी आता है। अब गुज़श्ता 2 रोज से पानी बंद है, मुंह हाथ कहां पर जाकर धोएं। इनके पास एक ही बहाना है जी, लाइट नहीं आती, जबकि पूरे वासा डिवीज़न में इनके पास जनरेटर हैं। मियाँ नवाज मियाँ साहब की हुकूमत में जनरेटर थे, उससे काम चलता था। पानी का कुछ किया जाए, हुकूमत को इतना तो चाहिए ना कि कुछ ना कुछ तो बेनिफिट करे। जब से आई है सूखी कोई नहीं है, दुख पे दुख देती जा रही है। कभी कोई टाइमिंग कर देते हैं, कभी कोई मजाक वाली बात है। अब रात को 3:30 बजे की टाइमिंग कर दी है जी, 5 बजे तक, सुबह 8:30 से 10 बजे तक, लेकिन उसमें भी पानी कभी आता है और कभी नहीं। अहले इलाका का कहना था कि वासा हुकाम जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं। शिकायत भी दर्ज नहीं की जाती, जाएं तो किसके पास जाएं। साकिब हुरम, सिटी 42। सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन, ड्राइवर्स, पीएस और स्टेनोग्राफर्स ने तनख्वाहों में इजाफा न होने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहिरे में सिविल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉइज एसोसिएशन, सिविल सेक्रेटेरिएट ड्राइवर्स एसोसिएशन, सिविल सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन ने शिरकत की। छोड़ दिया और रैली की शक्ल में सिविल सेक्रेटेरिएट के तमाम दफातर के चक्कर लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत तनख्वाहों में फौरी तौर पर 20% इजाफा करे, तमाम एड हॉक अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाहों में जम किया जाए और कम अज कम तनख्वाह 1 तोला सोने के बराबर की जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि जिस शरह से महंगाई बढ़ रही है इसी शरह से तनख्वाह बढ़ाई जाए। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन वजीर आजम इमरान खान, वजीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि जब तक तनख्वाहें नहीं बढ़ती वो एहतजाज जारी रखेंगे। रायगढ़ में भाई ने साथियों के हमराह फायरिंग करके बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। दोहरे कत्ल की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। दोहरे कत्ल का वाकया रायगढ़ के नवाही गांव वतना में पेश आया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम साइम अपने 8 साथियों के हमराह बहन के घर दाखिल हुआ और अंधाधुन गोलियां बरसा दी। फायरिंग के बायस बिनिश और उसका शोहर अवैस मौका पर ही जाँ बक हो गए। लॉक नहीं था, सीधे आए और आके कमरे में इनों के 2 मेन गेट है हमारे घर के। पहले मेन गेट में से इंटर हुए हैं, फिर दूसरे मेन गेट में से इंटर हुए हैं। दूसरे में से जाके फिर वो तीसरे कमरे में जाके उन्होंने अपने बहनवी को और अपनी बहन को सीधे ब्रेस्ट मारे हैं सर। उनके पास तकरीबन तरह तरह का उनके पास असला था। मुल्ज़मान खौफ व हरास फैलाने के लिए इलाके में भी फायरिंग करते रहे। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मरकजी मुलजिम साइम और इसके एक साथी अंसर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुल्ज़मान मौका से फरार हो गए। पुलिस ने मौके पे जो 15 पे कॉल हुई, जो पता चला उसके मुताबिक उन्होंने 2 बंदे गिरफ्तार किए और उसमें करके उनके अभी मतलब पर्चे की जो सूरत वो चल रही है।
हो सकता है पर्चा हो गया हो कि वो रायगढ़ थाने हम इधर जनाब में खड़े होंगे, तो वो कार्रवाई करके उन्होंने 2 को गिरफ्तार पकड़ के, दोनों के पास असला भी मिला है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में दोहरे कत्ल की वारदात जायदाद का तनाजा मालूम होती है, ताहम हतमी वजूहात तफ्तीश के मराहिल मुकम्मल होने पर सामने आएंगे। कैमरामैन नदीम डाउन के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। पुलिस की दर्जनों फोर्सेज और 24 घंटे गश्त के बावजूद शहरी गैर महफूज हैं। डकैती की वारदातें दिन दिहाड़े होने लगी हैं। निश्तर कॉलोनी अवान मार्केट में एक हफ्ते के दौरान दिन दिहाड़े डकैती की 8 वारदातें हुई। लॉकडाउन के दौरान पुलिस पेट्रोलिंग बुरी तरह मुतासिर होती हुई नजर आ रही है। शहरी अब दिन में भी डाकुओं के रहमो करम पर हैं। निश्तर कॉलोनी अवान मार्केट के इलाके में दिन दिहाड़े एक ही हफ्ते के दौरान 8 डकैती की वारदातों से शहरियों में खौफ फैल गया। ताजिर कहते हैं कि डाकू दिन दिहाड़े मंडलाते फिरते हैं, कभी किसी की दुकान लूट लेते हैं तो कभी बड़े बाजार में शहरियों को लूट लिया जाता है। मेरा मोबाइल है और कैश था, उसमें मेरा कोई पर्स में था तकरीबन 17,000, 3,000 तकरीबन गले में भी होगा मेरा पड़ा, वो भी लेके गया, गन पॉइंट पे लेके गया वो। पुलिस ने क्या करना, कुछ नहीं करना। जो वारदातें मुसलसल हो रही हैं, ठीक है ना, तकरीबन वो सेम लड़के हैं, सेम गेटअप, बाइक का नंबर वही सेम। हमने वीडियोस बनाई हुई हैं, जो CCTV फुटेज आई है वो हमारे पास मौजूद है। 15 पे कॉल होती है, SHO साहब खुद क्यों नहीं आते? अवान मार्केट में डाकुओं की दिन दिहाड़े लूटमार करके फायरिंग करने और फरार होने की वीडियोस भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। अवान मार्केट के मकीनों का मुतालबा है कि इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग का निजाम बेहतर किया जाए और वारदातों में मुलविस डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। और एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस और आमदन से जायद असासे बनाने के रेफरेंस में हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 1 जुलाई, जबकि शहबाज शरीफ फैमिली के असासे मुंजमद करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन की अदालत में आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत थी। अदालत में पुलिस ने हमजा शहबाज को जुडिशल रिमांड में तोसी के लिए पेश करना था, लेकिन हमजा शहबाज को पेश करने की बजाय जेल की तरफ से वारंट भिजवा दिए गए। अदालत को बताया गया कि हमजा शहबाज को कोरोना वायरस की वजह से पेश नहीं किया जाएगा। इस्तदा है कि जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी जाए, जिस पर अदालत ने वारंट पर 1 जुलाई तक तोसी कर दी। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ की तरफ से फैमिली के असासे मुंजमद करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। अदालत में बहस के लिए मोहलत मांग ली गई। इस पर अदालत ने आखिरी मौका देते हुए कार्रवाई 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने साबिक DG LDA आहा चीमा के खिलाफ गैर कानूनी असासे के रेफरेंस की समाअत 4 गवाहों के बयान कलमबंद करने के बाद मुलतवी कर दी। अदालत ने मजीद गवाह तलब कर लिए। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी, सलमान अलवी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। हाई कोर्ट में कोरोना के मरीजों के प्लाज्मे की फरोख्त के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ को 23 जून को जाती हैसियत में जवाब समेत पेश होने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने केस की समाअत की। दरखास्त गुजार ने विफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, सेक्रेटरी सेहत समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खून की फरोख्त के खिलाफ कवानीन की मौजूदगी के बावजूद अमल दरामद नहीं हो रहा। मुल्क में कोरोना के खिलाफ प्लाज्मा की फरोख्त कवानीन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। खून के इस धंधे में अब बैनुल अक़वामी माफिया भी शामिल हो चुका है। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की कि कोरोना की सेहतियाब होने वाले मरीजों का प्लाज्मा फरोख्त करने पर पाबंदी आयद की जाए। चीफ जस्टिस ने वकील को कोरोना के मरीजों की फरोख्तगी के मामले पर सख्त इजहार बरहमी करते हुए कहा कि कानून मौजूद है तो प्लाज्मा कैसे फरोख्त हो रहा है। दोनों सेक्रेटरी सेहत आइंदा समाअत पर पेश होकर बताएं कि प्लाज्मा फरोख्त करने वालों के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। ननकाना में सिख लड़की से शादी करने वाले जोड़े को हिरासत करने का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में 9 मुस्लिम सिख लड़की आयशा का खावंद के साथ जाने का बयान। अदालत ने सिखों के वकील के दम पेशी के बायस समाअत मजीद कार्रवाई के लिए 25 जून तक मुलतवी कर दी। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने आयशा और हसन की दरखास्त पर समाअत की। पुलिस की नफरी की हसार में 9 मुस्लिम सिख लड़की आयशा को पेश किया गया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने लड़की से इस्तफसार किया कि वो किसके साथ रहना चाहती है, जिस पर पसंद की शादी करने वाली आयशा ने बताया कि बालिग हूँ, मर्जी से शादी की, अपने ससुराल वालों के साथ रहना चाहती हूँ। लड़की के बुरसा सिखों ने अदालत को बताया कि उनका वकील नहीं आया। इस्तदा है कि उनके वकील को दलाइल के लिए मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने केस की मजीद कार्रवाई 25 जून तक मुलतवी कर दी।
दरखास्त गुजार हसन की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ननकाना की सिख लड़की जगजीत कौर को मुसलमान करके उसका नाम आयशा रखा। आयशा को मुसलमान करके लाहौर में उससे शादी की। शादी करने पर सिखों की जानिब से धमकियां दी गईं। गवर्नर पंजाब ने सुलह भी करवाई, लेकिन इसके बावजूद फिर मुसलसल हिरासत किया जा रहा है। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत आयशा को मर्जी के मुताबिक खामन के साथ जाने और जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दे। कमरा अदालत के बाहर एंटी राइट पुलिस के दस्ते तैनात रहे, जिसमें ख़वातीन पुलिस एहलकार भी शामिल थी। मुमकिना हंगामा आराई के पेश नजर पुलिस की भारी नफरी अहाताए हाई कोर्ट में तैनात की गई थी। इस मौका पर एसपी सिविल लाइन दोस्त मोहम्मद, एसपी सिक्योरिटी कासिम खान समेत दीगर अफसरान कमरा अदालत के बाहर मौजूद रहे। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने फंड रेजिंग केस में जमात उद-दावा के प्रोफेसर अब्दुर्रहमान मक्की और अब्दुल सलाम को 1-1 साल कैद और 20,000 रुपए जुर्माना, दीगर रहनुमाओं जफर इकबाल और यहया मुजाहिद को 5-5 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में सिटी की तरफ से जमात उद-दावा के प्रोफेसर अब्दुर्रहमान मक्की, हाफिज अब्दुल सलाम, जफर इकबाल और यहया मुजाहिद के खिलाफ लॉकडाउन से पहले फंड रेजिंग के इल्जाम में चालान पेश किया था। कमर्शियल अराज़ी की गैर कानूनी अलॉटमेंट से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए नुकसान पहुंचाने का मामला है। एंटी करप्शन ने साबिक डीसी कसूर राना मोहम्मद अरशद और एडीसीआर कसूर डॉक्टर मंसूर अहमद खान समेत 17 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। करोड़ों रुपए मलियत की कमर्शियल अराजी की गैर कानूनी अलाटमेंट से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने पर 2 डीएमजी अफसरान समेत 17 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान पर भारी रिश्वत के एवज 17 कनाल 18 मरले कमर्शियल अराजी की गैर कानूनी अलाटमेंट का इल्जाम है। एंटी करप्शन में दर्ज FIR में साबिक डीसी कसूर राना मोहम्मद अरशद और ADCR डॉक्टर मंसूर अहमद खान समेत 17 मुल्जिमान को नामजद किया गया है। साबिक डिप्टी कमिश्नर कसूर और ADCR कसूर पर सरकारी खजाने को 35 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। FIR में हेड क्लर्क कॉलोनी ब्रांच कसूर कैसर नजम शाह, मुफाद कुनिंदगान मोहम्मद असलम, फातिमा, खुर्शीद बेगम, परवीन बीपी, अल्लाह देता, रशीदा बेगम, मोहम्मद जावेद, नसीम मकबूल समेत 17 मुल्जिमान को नामजद किया गया है। एंटी करप्शन ने साबिक सब रजिस्ट्रार कसूर कमर महमूद मंज और रजिस्ट्री क्लर्क इमरान इलाही के किरदार का तयन दौरान तफ्तीश करने का फैसला किया है। DG एंटी करप्शन मोहम्मद गोहर नफीस से मंजूरी के बाद तफ्तीशी टीम ने 62 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। रिपोर्ट रिजवान नकवी, सिटी 42। लाहौर के एक नौजवान आर्टिस्ट ने ऑरेंज ट्रेन लाइन की तख्लीक से मुतल्लिक तमाम याददाश्तों को अपने हाथों से तराश डाला। रिदा NCA से तालीम याफ्ता एक विजुअल आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने अपने फन और हुनर से माजी की याददाश्तों को तख्लीकी शक्ल दे डाली है। रिदा के मुतालिक जानते हैं अफीफा नसरुल्लाह की इस रिपोर्ट में। नाम रिदा फातिमा है और मैंने 2016 में NCA से मास्टर्स किया विजुअल आर्ट्स के अंदर, और उसके बाद जो है मैंने अपना थीसिस किया जो भी हमारी इमारतें हैं लाहौर की, और उस वक़्त में जो है मैं अपना थीसिस कर रही थी ऑरेंज लाइन जो है उस प्रोजेक्ट के ऊपर कि किस तरह से मस्मार की गई वो इमारतें जो लोगों की एक पर्सनल प्रॉपर्टी थी, और मैंने बेसिकली वो घर तमीर किए कि जो अपनी असली मौजूदा हालत में हमें मुयस्सर नहीं है अब उस मैदान पर, उन गुज़रगाहों पे जहाँ पर हम गुज़रते थे, और वहाँ पर अब हमें अपनी असली हालत में वो नज़र नहीं आते हैं। मेरा जो मीडियम है वो मेरा इंटायरली बेस्ड अपॉन है वुड में, और इसकी जो ब्रिक्स का भी काम है वो पहले मैंने टेराकोटा में स्टार्ट किया, लेकिन फिर उसके बाद जो मुझे इसकी वो उसमें बहुत एक फ्रेश लुक आ रही थी। फिर उसके बाद जो मुझे इसमें ओल्ड एक उसका टच दिखाना था, फिर मैंने इसमें वुड में कई डाइज इस्तेमाल किए, जिससे मैंने जो उसकी पुरानी लुक है वो इख्तियार की। मैं इसको जो है वो कंटिन्यू करूँगी इसी लैंग्वेज के अंदर, लेकिन जिस तरह से काम होता जाएगा और उसका कुछ कह नहीं सकती कि वो किस तरह से जो है अपनी शक्ल इख्तियार कर लेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि किस तरह से पुरानी इमारत में जो नेचर का एलिमेंट है वो आता है, और वो कदीम ही था मेरे लिए। मेरा ज़्यादा फोकस ये कि मैं रिसर्च बेस्ड काम करूं, जो हमारी हिस्ट्री है वो किसी भी तरह से जो उसका वो उस हिस्ट्री को जो है वो हाईलाइट करूं, कि जो लाहौर की एक हिस्ट्री है उसके ऊपर बेसिकली मेरा है कि मैं उस पर काम करती रहूँ। पंजाब असम्बली के इजलास में बजट पर पहले रोज में हुकूमत और अपोजिशन की एक दूसरे पर रिवायती इल्जाम तराशी जारी रही। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ ने बजट को मुस्तरद करते हुए अवाम के लिए मायूस कुन करार दे दिया।
पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे 10 मिनट की तखीर से शुरू हुआ। अपोजिशन लीडर मियां हमजा शहबाज शरीफ ने बजट पर आम बहस का आगाज किया। उन्होंने बजट को अवाम दुश्मन करार दिया। कहते हैं नैब और मैशत एक साथ नहीं चल सकती। हुकूमत की नाकस हिकमत अमली से कोरोना वायरस तेजी से फैला। अब 50,000 टेस्ट रोजाना होने चाहिए। हमजा शहबाज शरीफ के जवाब में सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा कि मैशत न सकाएं, इनकी जाती मैशत खराब हुई है, अब खांचे बंद हो गए हैं। पीपी के रुकन मखदूम उस्मान महमूद ने कहा कि हुकूमत अवाम बजट पेश करने में नाकाम रही, अब कोरोना के पीछे छुप रही है। हुकूमती मेंबरान की तकरीर के दौरान आजमा बुखारी सरापा एहतजाज रही, बोली अब बर्दाश्त से बाहर है, आप इल्जाम तराशी कर रहे हैं। स्पीकर ने मुदाखलत करने पर रूलिंग देते हुए कहा कि ये तरीका ठीक नहीं, अगर ऐसे करना है तो ऐवान से बाहर चली जाएं। स्पीकर ने इजलास जुमे की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के हमरा अली अकबर, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि मास्क और समाजी फासला अपनाने से कोरोना से बचाव मुमकिन होगा। अवाम मास्क पहने और समाजी फासले की पाबंदी को अपना शार बनाएं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ अज़ला के अरकान सूबाई असम्बली ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि कोरोना का फैलाव कम करने के लिए अवाम का भरपूर ताउन बेहद ज़रूरी है। ज़्यादा मुतासरा इलाकों को सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना केसेस खत्म होने पर सील शुदा इलाकों को खोल दिया जाएगा। मास्क और समाजी फासला अपनाने से कोरोना से बचाव मुमकिन होगा। अवाम मास्क पहने और समाजी फासले की पाबंदी को अपना शार बनाएं। और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ एक और महाज तैयार हो चुका है। रुकने असम्बली ख्वाजा मोहम्मद दाऊद सुलेमानी ने वज़ीर आला के खिलाफ मैदान में आने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ एक मरतबा फिर महाज तैयार हो गया। डेरा गाजी खान 1 से रुकने असेंबली ख्वाजा दाऊद सुलेमानी वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मैदान में आ गए। रुकने असेंबली की मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई। ऑडियो में रुकने असेंबली ने ग्रुप के दीगर अफराद से गुफ्तगू में खुलकर दिल की भड़ास निकाली। कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपनी बात पर कायम नहीं रहते। जो मैं कल परसों कहना ना इनके खिलाफ जो है ना इतना जबान खोलन हुण शुरू कर देना, चूंकि इन्हें 15 को यो बजट करा उन्हें 15 तक देते हैं। ऑडियो में रुकने असेंबली ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए वजीर आला की तवज्जो इलाके के मिसाइल पर दिलाई और कहा कि कोई अफसर बात सुनता है ना ही फंड्स फ्राहम किए जा रहे हैं, लोगों को क्या जवाब दे। ना कोई अफसर गार सुन दे ना कोई फंड है, लोगों को सा क्या दूं। ये जो साग सुना सारा जेड़ा है हर कोई समझे सी जो एपोजिशन इच खड़न फंड इन्हें कने मंगण दा फायदा कोनी, इन्हें को काम आखण दा फायदा कोनी। ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ऑडियो में कहते हैं कि अगर बात ना मानी गई तो मैदान में उनके खिलाफ खुलकर सामने आऊंगा। कजाफी बर्ड, सिटी 42। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ात जमहूरियत का हुस्न है, मगर कोई इत्तेहादी हुकूमत गिराने की बात नहीं कर रहा। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म 2023 तक आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। में जहाँ कहीं भी इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, उनका आपस में इख्तलाफ राय होता है, ये जमहूरियत का हुस्न है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तमाम इत्तेहादियों को पाकिस्तान में साथ लेकर चलना चाहते हैं और हमारे इंशाअल्लाह मुज़ाकरात जो हैं BNP से जारी रहेंगे और किसी भी हमारे इत्तेहादी ने हुकूमत को गिराने की बात जो है वो। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की वाने सदर में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई। चेयरमैन नैब ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को ब्यूरो की सालाना 2019 की रिपोर्ट पेश की। चेयरमैन ने सदर मुमलिकत को नैब की कारकर्दगी से आगाह किया। चेयरमैन नैब के मुताबिक नैब ने साल 2019 में 741 इंक्वायरीज और 269 तहकीकात मुकम्मल की। 2019 में नैब ने 141 अरब 54 करोड़ रुपए की वसूलियां की हैं। चेयरमैन नैब के मुताबिक साल 2019 के दौरान प्रोसिक्यूशन की कामयाबी का तनासुब 68.8% है। सदर मुमलिकत ने नैब की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि नैब एक आज़ाद इदारा है, मुआशरे से बदउनवानी के खात्मे के लिए नैब को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी उमर तनवीर भट्ट और DG फूड इरफान मेमन की ज़ेर-ए-सदारत इजलास हुआ। फूड अथॉरिटी टेक्निकल विंग की कारकर्दगी और इज़्ज़ात कार को बढ़ाने के हवाले से लाए अमल तरतीब दिया गया है। चेयरमैन पंजाब फूड अथॉरिटी उमर तनवीर भट्ट और DG इरफान मेमन को ADG टेक्निकल ने ब्रीफिंग दी। मोबाइल मिल्क टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज और प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के हवाले से हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मियां अंजुम निसार ने वीडियो लिंक के जरिए मुशीर खजाना फीस शेख को बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। FPCCI के रीजनल ऑफिस में सदर FPCCI मियां अंजुम निसार ने वीडियो लिंक के जरिए मुशीर खजाना
हफीज शेख को वफाकी बजट पर ताजरों और सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मियां अंजुम निसार का कहना था कि मौजूदा हालात को देखते हुए हुकूमत को बजट में ताजरों और सनतकारों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए था। करप्शन के खात्मे और पॉलिसिंग बेहतर बनाने के लिए पंजाब पुलिस का नया स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का प्रोजेक्ट तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सका है। आईजी पंजाब का कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इज़हार। साबिक आईजी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज की जानिब से लाहौर में 5 और सूबा भर में 51 थाने नए तर्ज पर शुरू किए गए थे। थानों में पुलिस और आवाम के रवाबित, केसेस की तफ्तीश, दरखास्त जमा करवाने और मुलाकात समेत दीगर मामलात बैरूनी ब्लॉक पर होने थे, लेकिन मुमकिना हदफ हासिल नहीं हो सका। लाहौर में 5 थाने टाउनशिप, काहिना, डिफेंस से शुमाली छावनी और न्यू अनारकली शामिल हैं। इसी तरह कैपेसिटी के मुताबिक तमाम इजला में थाने मौजूद हैं। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर ने तमाम आला अफसरान को हिदायत दी है कि स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन नई तर्ज पर काम नहीं कर रहे। नए थानों में तफ्तीश, इंदराज मुकदमा समेत दीगर मामलात पुराने ही चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि फी थाना 20 लाख रुपए इजाफी फंड्स भी दिए गए मगर नताइज हासिल नहीं हो रहे। आईजी पंजाब ने कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए खुसूसी ऑडिट कराने का भी हुक्म दे दिया है। लाहौर पुलिस के ज़िले तामीर थानों को रवा माली साल में मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। आईजी पंजाब ने लाहौर पुलिस को थानों की तामीर मुकम्मल करने और मयार को बेहतर बनाने की हिदायत की है। शहर में 33 थाने ऐसे थे जिनकी अपनी जगह नहीं, लेकिन साबका दौरे हुकूमत में लाहौर के 9 थाने तामीर करने के अहकामात जारी किए गए। इन पर काम भी शुरू कर दिया गया, ताहम ये थाने सालों से तकमील तक न पहुंच सके। हुकूमत की जानिब से किला गुज्जर सिंह थाने की तामीर के लिए रवां साल 2 करोड़ 60 लाख रुपए रखे गए। चौंग पुलिस स्टेशन के लिए 2 करोड़ रुपए के फंड रखे गए। लोहारी गेट पुलिस स्टेशन के लिए 1 करोड़ रुपए रखे गए। यकी गेट पुलिस स्टेशन के लिए 2 करोड़ रुपए के फंड रवां साल खर्च होंगे। गुलशनावी पुलिस स्टेशन के लिए रवां साल 50 लाख रुपए के फंड रखे गए। फैसल टाउन पुलिस स्टेशन की तामीर पर भी रवां साल 50 लाख रुपए खर्च होंगे। लियाकताबाद पुलिस स्टेशन की तामीर पर भी रवां साल 10 लाख खर्च किए जाएंगे। गुलशन इकबाल पुलिस स्टेशन की तामीर पर 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फैक्ट्री एरिया थाने की तामीर के लिए 1 करोड़ 13 लाख रुपए के फंड इस्तेमाल होंगे। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इन थानों की तामीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मजीद थानों के लिए जगह भी तलाश की जा रही है। इरफान मलिक, सिटी 42। पुलिस वर्किंग में बेहतरी लाने के लिए लाहौर पुलिस का कंट्रोल रूम अपडेट कर दिया गया है। पुलिस की गाड़ियों की मॉनिटरिंग के साथ साथ थानों में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी मॉनिटर किया जा सकेगा। सीसीपीओ लाहौर जुल्फिकार हमीद ने अपग्रेडेशन और रूम डीआईजी ऑपरेशंस का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर डीआईजी ऑपरेशंस इशफाक खान, एसएसपी एडमिन कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक समेत दीगर ने शिरकत की। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ने जच्चा बच्चा सेंटर्स के लिए तिब्बी सहूलियात की फराहमी के कम से कम मयार की मंजूरी दे दी है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स की चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर अतिया मुबारक की सरबराही में टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का यूएचएस में इजलास हुआ। इजलास में वीसी यूएचएस प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, कन्वीनियर टेक प्रोफेसर अशरफ निजामी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर शुएब खान और डायरेक्टर क्लिनिकल गवर्नेंस डॉक्टर मुश्ताक सुलहरिया समेत दीगर मेंबरान शरीक हुए। कोरोना वायरस के मुश्किल दौर में जमात इस्लामी ने महंगाई का तोड़ निकाल लिया है। 10 रुपए की 3 रोटियां और 10 रुपए का सालन 20 रुपए में पेट भरकर अवाम खाना खा सकेंगे। जमात इस्लामी ने मंसूरा मुल्तान रोड पर काजी हुसैन अहमद की याद में लॉकडाउन के दौरान सफेद पोश तबके की सहूलत के लिए दस्तरखान सजा दिया। दस्तरखान में शहरियों को डिस्पोजेबल बर्तनों में सिर्फ 20 रुपए में 3 रोटियां और सालन मिलेगा। सहूलत से फायदा उठाने वाले शहरियों का कहना था कि हुकूमती फराइज दीगर जमातें सरंजाम दे रही हैं। हकीकी तब्दीली यही है। मैं मंसूरा में नौकरी करता हूँ। मैं कहता हूँ ये देखो, जो हुकूमत को करना चाहिए था, जो इमरान खान ने कहा था नारा लगाया मैं नया पाकिस्तान, अब बजट इतना भेज दिया गरीबों के लिए। अब देखो हम 20 रुपए में खाना कौन देता है? 10 रुपए में 3 रोटी, 10 रुपए के अंदर बाहर से ले तो मैं 70-80 रुपए लेते हैं सालन के, 100 रुपए लगता है। गरीबों के लिए अब कर रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और माशाल्लाह ये जो ना, मैं दुआ करते हैं कि इस जमात को अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे। मेरा ख्याल है जो हुकूमत काम नहीं ना कर सकती वो इन्होंने काम किया, अल खिदमत वालों ने। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में सराजुल हक का कहना था कि वफाकी और सूबाई बजट मजदूर और अवाम का बजट नहीं। यास्मीन राशिद ने अवाम को नहीं अपने वोटर्स को बुरा भला कहा है। सराजुल हक ने हुकूमत पर तनकीद के खूब नश्तर चलाए। कहा कि इमरान खान साहब आप कोई डिक्टेटर नहीं, अपने खिलाड़ियों को कहें कि अस्पतालों में जाएं। अगर वजीर सेहत ने ये कहा है कि लाहौरी जाहिल है तो उन्होंने तमाम लाहौरियों को नहीं कहा है, सिर्फ उन लोगों को कहा है जिन्होंने उनको वोट दिया था।
اس نے اپنے ووٹر کو جاہل کہا ہے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا. آپ پریشان نہ ہو, آپ کو نہیں کہا ہے. سراج الحق کا مزید کہنا تھا کہ کورونا سے متاثر لوگ ہسپتالوں میں ایک بیڈ, ایک وینٹیلیٹر, ایک انجیکشن اور ایک گولی کے لیے ترس رہے ہیں. جماعت اسلامی کی الخدمت دسترخوان پر پورے مہینے سبزی, دال اور گوشت کیا جائے گا. کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ عمران یونس, سٹی 42. رکن صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ کی منصورہ میں ہونے والی ڈکیتی کے دوران گولی لگنے سے زخمی ہونے والے میاں عرفان کے گھر آمد ہوئی. ملک ندیم عباس بارہ نے میاں عرفان کی خیریت دریافت کی اور جلد صحتیابی کے لیے دعا کروائی. گزشتہ روز تھانہ ہنجروال کی حدود میں دوران ڈکیتی منصورہ کے رہائشی میاں عرفان کو گولی مار کر ڈاکوؤں نے زخمی کر دیا تھا, جس پر رکن صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ زخمی میاں عرفان کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر پہنچے اور میاں عرفان کی عیادت کی اور ان کی جلد صحتیابی کے لیے خصوصی دعا کی. اے پی پی این نے بورڈ آف ٹرسٹیز کی ممبر ڈاکٹر روبینہ عنایت انتقال کر گئیں. ایسوسی ایشن آف فزیشنز آف پاکستانی ڈینٹسٹ آف نارتھ امریکہ کے رکن روبینہ عنایت فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی فارغ التحصیل تھیں اور چائلڈ سائیکیٹری اسپیشلائزڈ تھیں. وہ شمالی امریکہ کے فاطمہ جناح میڈیکل کالج الومنائی کی صدر اور اے پی پی این اے کی تاحیات رکن تھیں. شہید پاکستان ڈاکٹر سرفراز نعیمی کے چھوٹے بھائی تاشور نعیمی کے سال ثواب کے لیے جامعہ نعیمیہ میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا. دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید کے بھائی ان کے سال ثواب کے لیے کلخانے کی تقریب منعقد ہوئی, جس میں ناظم اعلیٰ جامعہ نعیمیہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی سمیت دیگر نے شرکت کی. سانحہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کی 6ویں برسی دعائیہ تقریبات کا سلسلہ جاری. منہاج القرآن لاہور کے رہنماؤں نے شہداء کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی. تحریک منہاج القرآن لاہور کے صدر حافظ غلام فرید, ناظم اشتیاق حنیف مغل کی قیادت میں ضلعی قائدین اور کارکنان پر مشتمل وفد نے لاہور میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے 6 شہداء کی قبروں پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی. کورونا وائرس کے باعث تنہائی اور نفسیاتی دباؤ کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. ماہرین کے مطابق کورونا کو شکست دینے والے افراد کو معاشرتی امتیازی سلوک کا سامنا ہے, جس کی وجہ سے نفسیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں. لاک ڈاؤن کے دوران لمبے عرصے تک گھر میں بند رہنا اور سنسنی خیز خبریں بے چینی اور ذہنی دباؤ میں اضافہ کرتی ہیں, جس کی وجہ سے منفی رویے اور شہریوں میں اضطراب بڑھ رہا ہے. معاشرے کی بے حسی کا عالم یہ ہے کہ کورونا مریض کو اچھوت سمجھ کر غیر مناسب رویہ رکھا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ڈپریشن جیسے امراض کے سنگین نتائج نکل رہے ہیں. کورونا سے شفایاب ہونے والے نفسیاتی امراض سے جنگ جیتنے کی کوشش میں ہیں. بہت ٹف تھا, جو ہے نا لوگ ہیزیٹیٹ کرتے تھے اور گھر میں بھی جو ہے نا وہ اکیلا رہنا پڑا, اور الحمدللہ ریکوری ہو گئی ہے, تو اب بہترین ہے, زبردست ہیں. اور جو ڈپریشن ہے یہی ہے کہ بس آپ احتیاط کریں اور کچھ دن کے لیے سیپریٹ رہیں اور انشاءاللہ ریکوری ہو جاتی ہے. ماہرین کے مطابق کورونا جیسی بیماری سے لڑنے کے لیے ذہنی اور جسمانی تندرستی انتہائی ضروری ہے. اگر قوت مدافعت کمزور پڑ گئی تو کورونا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. کورونا سے لڑنا ہے, اس سے محفوظ رہنا چاہیے, یہ نہیں نعرہ لگانا چاہیے یہ لڑ نہیں سکتے ہم, اللہ کے شاعر جتنے بھی ہیں نا ان سے لڑ نہیں سکتے, اس سے پناہ مانگ سکتے ہیں. تو اس کی اللہ پاک نے اس سے بڑی مہم دعا کی ہے, اللہم ارفع عنا البلاء والوباء. تو یہ دعا کا وظیفہ کریں, اس میں محفوظ پناہ کی بات ہے, لڑنے کی بات نہیں ہے. کورونا کا برا وقت گزر جائے گا, مگر اس دوران درپیش ذہنی مسائل سے نکلنے کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا. اس لیے ماہرین کہتے ہیں کہ بہتر زندگی گزارنے کے لیے جسمانی اور ذہنی آسودگی انتہائی ضروری ہے. کیمرہ مین ساقی ملک کے ساتھ سعدیہ خان, سٹی 42.